Today's topic is iterative waterfall model, right? What is the basic difference between simple classical waterfall model and iterative waterfall model? So in previous lecture, we already discussed what is the difference between iterative waterfall model and classical model. Refer this figure, right? In classical waterfall model, each and every phase directly related in a top-down fashion, right? But in iterative waterfall model, each and every phase can interactive with reversible order also, right? For example, in classical waterfall model, feasible study, right? This phase output is input for the requirement analysis phase. Output of requirement analysis phase is input of designing phase. There is no communication between designing phase to analysis phase. Suppose in designing phase, you face some problem and you want to communicate the analysis team or analysis members, team members. So there is no medium in waterfall model, right? That is a drawback of waterfall model. So the enhanced model name is iterative waterfall model. So in iterative waterfall model is reversible is also possible. Suppose in feasible study, right? After completion of feasible study, you go through the requirement analysis phase, and during the requirement analysis you feel some difficulty, so you immediately contact the feasibility study teams and communicate the things, and on the basis of your communication they refine the things and again communicate to you that your problem is solved or not, right? So it's called the reversible engineering. In another word, that word is called reversible engineering, right? So at that part, uh, reversible engineering, so each and every phase are directly connected to previous phase, or in this figure feasible study is directly connected to maintenance, right? Requirement analysis is directly connected to maintenance, design analysis is directly connected to maintenance, coding and testing. So each and every phase directly connected to each and every other phase, right? So that is the beauty of iterative waterfall model, right? So in iterative waterfall model क्या है? Classical waterfall model is idealistic. Assume that no defect is introduced during any development activity, right? अगर आपको कोई भी डिफेक्ट मिला किसी भी नेक्स्ट फेज पे, तो आप उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, उसे आपके पास में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, वो जिसकी वजह से ऑकर हुआ, अगर प्रीवियस फेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, so there is no communication. In practice, defect to be get introduced in most every phase of the life cycle. और इट्स अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कि हम कोई भी चीज फर्स्ट टाइम में डिजाइन करें तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है, राइट? वी फेस अ डिफिकल्टी इवन इन रियल लाइफ एग्जांपल, यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट? तो इट्स नॉट अ वन टाइम सोल्यूशन, आप बैठे हो और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया, राइट? इट्स अ phases wise, you face some difficulty, again you solve that problem, and after certain time period you create a final solution. So at the software industry, if you solve any problem, so the same scenario is applied, right? Defects usually get detected much later in the life cycle, right? For example, a design defect might be unnoticed till coding or testing phase. Suppose आपके पास में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम थी, टेक एग्जांपल, इन रियल वर्ड्स एग्जांपल, सपोज मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है, ड्यूरिंग माय डेवलपमेंट फेज वर्किंग विद सम कंपनी। सो वहां पे आपके पास में प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने सारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, बट एक छोटा सा पार्ट हमारे पास में एनालिसिस पार्ट से छूट गया, कि जो भी आपके पास में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, they are most of the time working on the keyboards, right? They don't use the mouse, and even they not prefer to use the mouse, right? So they want each and every activities on a keyboard side. So and during development phase we skip this thing, right? So most of the functionality are given on the mouse activities. So after completion of the project, when we deploy the project, there is a big problem, and when we facing this problem, so number of times हमने इनके solutions को incorporate करना चालू किया, तो हमारे पास में जो चीजें थी, जो एक्टिविटीज या जो हमने एक्शंस कीबोर्ड से रिलेटेड परफॉर्म किए थे, वो आपके पास में क्या होने लगे, मिसमैच होने लगे। सपोज हमने एंटर पे कुछ और फंक्शनलिटी दी थी पहले हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और माउस पे हमने दूसरा काम दिया हुआ था। अब माउस की एक्टिविटीज को हमने इवेंट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो इवेंट के बेसिस पे हम एंटर पे डिफाइन कर रहे हैं, तो अब जो पहली वाली फंक्शनैलिटी थी, जो एंटर पे कोड थी, वो कहाँ जाएगी, राइट? सो लॉट ऑफ chaos is created, ultimately the project is shut down, right?
सो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके पास में कितनी बिग हो सकती है, दैट इज अ एग्जांपल फॉर दैट, राइट? ओके, सो इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि आपके पास में कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी इनिशियल फेज में, लेकिन वो आपके पास में इंट्रोड्यूस हो रही है फाइनल फेज में जाके। सो आपको लॉट ऑफ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए, राइट? Once a defect is detected, we need to go back to the phase where it was introduced, redo some of the work done during that and all subsequent phase. Therefore, we need feedback path in the classical waterfall model, right? So, iterative waterfall model और classical waterfall model में क्या difference हुआ? यहाँ पे हमारे पास में feedback processes है। जैसे feasibility study ने अपना काम complete किया और आपको जो भी आउटपुट्स था वो आपके पास में रिक्वायरमेंट फेज के लिए भेज दिया, रिक्वायरमेंट टीम के पास में भेज दिया, रिक्वायरमेंट टीम उस पर वर्कआउट किया, उससे कुछ प्रॉब्लम हुई, अगेन दे फीडबैक द फिजिबिलिटी टीम, राइट? फिजिबिलिटी टीम ने उसे फिर से रिफाइन किया एंड देन सेंड बैक टू रिक्वायरमेंट टीम, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू each and every phase, and each and every phase directly related to previous phase. So this is a beauty of iterative waterfall model, right? Errors should be detected in the same phase in which they are introduced. सपोज आपके पास में हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हमने उसे वहां पे डिटेक्ट किया, किसकी वजह से डिटेक्ट हुआ, प्रीवियस फेज की वजह से डिटेक्ट हुआ, उसे इन्फॉर्म किया एंड वी रेक्टिफाई द प्रॉब्लम डू एंड देयर, राइट? If a design problem is detected in the design phase itself, the problem can be take care of much more easily than say if it is identified at the end of the integration and system testing phase. So that is a more complicated. Suppose आपका डिजाइनिंग टाइम में या कोडिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ऑकर हुई और आपने उस प्रॉब्लम को वहां पे टेक केयर नहीं किया, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे डिफरेंट मॉड्यूल्स का या जब आप सिस्टम टेस्टिंग करोगे, तो वो आपके पास में एक बिग प्रॉब्लम्स के पार्ट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? पहले वो छोटी थी लेकिन जब आपने सारी चीजों को एक साथ मर्ज किया तो उसके इफेक्ट बहुत सारी जगह जाएंगे, सो द प्रॉब्लम इज राइट? सो जो स्मॉलर प्रॉब्लम थी वो अब आपके पास में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, राइट? अब आपको सारे फेजेस पे जाके उसे करेक्ट करना पड़ेगा, सो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, राइट? तो जो आपका प्रोजेक्ट का ओवरहेड होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, राइट? फेस कंटेनमेंट ऑफ द एरर रीजंस क्या है आपके पास में? रीवर्क मस्ट बी कैरीड आउट नॉट ओनली द डिजाइन बट ऑल्सो to code and test phase. The principle of detecting error as close to its point to introduce as possible is known as phase containment of error. Iterative waterfall model is by far the most widely used model, right? Almost every other model is derived from the waterfall model. So जो हमारे पास में waterfall model है, it's a base model, right? So जितने भी आगे के और मॉडल्स हमारे पास में ड्राइव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास में वाटरफॉल मॉडल से ही इन्फ्लुएंस्ड है, राइट? तो जैसे हम आपसे बोलते हैं कि किसी भी चीज के हमने बेस स्टार्ट किया है, तो बेस स्टार्ट होने के बाद में आपके पास में चीजें जो भी होती हैं वो आगे इन्हेंसमेंट में जाते हैं, तो बट आपके जो भी बेस है वो एज इट इज कंटिन्यू रहता है। तो सेम चीज है, हमने बहुत सारे आगे मॉडल्स डेवलप किए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, बट सबका बेस आपके पास में कहीं ना कहीं क्या है, वाटरफॉल मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है, राइट? Irrespective of life cycle model actually forward, the document should be reflect as a classical waterfall model of development. Comprehension of the documents is facilitated, right? So more or less जो भी चीजें आपके पास में हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में, रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, बट कुछ चीजें आपके पास में क्या डिफरेंस होता है जब हम किसी भी फेज पे कोई भी चीज डिटेक्ट करते हैं, राइट? सो वहां से हमारे पास में चीजें डिफर होती हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में, राइट? और हर एक चीज का आपके पास में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, राइट? हर एक चीज आपके पास में ब्लाइंडली वर्क नहीं करती है, आपको हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक चीज के करेक्शंस हैं, राइट? जिससे आप उन चीजों को क्रॉस चेक कर सको, राइट? सो ये सारी की सारी चीजें आपके पास में एक तरीके से आपके जो वर्क है उनका एविडेंस होती है, उनकी प्रूविंग होती है कि आपने ये काम किया है, तो इसका प्रूविंग है या नहीं है, राइट? इवन थ्रो द प्रूफ माइट हैव बीन कम फ्रॉम द collective set of the partial attempts, blind lies and backtrack. So suppose हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज हमारे पास में डिजाइनिंग फेज में कोई प्रॉब्लम ऑकर हुई, राइट? अब लेकिन हमें लगा कि डिजाइनिंग फेज में जो प्रॉब्लम ऑकर हुई है, राइट, दिस वन, ओके, वो रिक्वायरमेंट की वजह से ऑकर हुई है,
बट एक्चुअल में वो प्रॉब्लम ऑकर हुई है फिजिबिलिटी स्टडी के अकॉर्डिंग, राइट। सो डिजाइनिंग फेज ने आपके पास में रिक्वायरमेंट को भी कांटेक्ट किया, और रिक्वायरमेंट ने किसको कांटेक्ट किया, फिजिबल स्टडी को। तो अब एक्चुअल में वो प्रॉब्लम किसकी थी, फिजिबल स्टडी की थी। तो फिजिबल स्टडी अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट को कांटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं ओकर हुई, ड्यू टू सम डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट्स आपके पास में प्रॉब्लम हुई फिजिबल स्टडी के साइड पे। सो डायरेक्टली ये पार्ट इस पार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकता है, राइट। सो दैट इज अ चेनिंग प्रोसेस आपके पास में, आप किसी भी जगह से किसी भी चीज को कॉल कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है आपके पास में, सपोज अगर हम प्रोटोटाइप मॉडल की बात करें, तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, अगर हम आपसे बोले रियल वर्ल्ड में अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो और उससे इन्फ्लुएंस होकर आप कोई नई चीज बना रहे हो, दैट इज अ प्रोटोटाइप, राइट। सपोज हमारे पास में पहले से कोई एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल फेसबुक बना हुआ है, राइट। अब आप फेसबुक से इन्फ्लुएंस होकर कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना चाह रहे हो, तो फेसबुक उस पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए क्या हो गया, एज अ प्रोटोटाइप हो गया, राइट। बहुत सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर आपके पास में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पहला बैंकिंग सॉफ्टवेयर था, हम उससे देख के उसकी फंक्शनलिटी को देख के इन्फ्लुएंस हुए। तो जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोटोटाइप, वो आपके पास में उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को लेके कंसिडर किया गया। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके पास में जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करती हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस करती हैं, तो उन्हें लगता है कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है और इसमें कुछ माइनर चेंजेस करने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो जाएगी। सो अब हम कॉस्टिंग एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास में हम क्रैश से उस सॉफ्टवेयर को बनाएं या रेडीमेड सॉफ्टवेयर परचेज करें और उसमें कुछ चेंजेस कर लें। सो आफ्टर आफ्टर डिसाइड द कॉस्टिंग फैक्टर्स, हम इन चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे पास में कौन सी चीज़ हमें फिजिबल लगती है, क्रैश से कोडिंग करना, और या फिर आपके पास में पर्टिकुलर पार्ट को परचेज करना और उसमें फिर चेंजेस करना। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रेडीमेड आपके पास में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परचेज कर लेते हैं, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। और उसमें आपकी जो एनालिसिस और फिजिबिलिटीज होती है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आपका जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। तो प्रोटोटाइपिंग बहुत तरीके से आपके पास में इंप्लीमेंट्स हो सकती है, राइट। So go through the certain points before starting actual development. A working prototype of the system should be first be built, right? So एक हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम आपसे बोलते हैं बिल्डिंग का एक प्रोटोटाइप बना दो, तो आपके जो मैप्स होते हैं वो एक तरीके के क्या होते हैं, प्रोटोटाइप होते हैं। एक्चुअल आपके पास में किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटोटाइप इज अ ट्राई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, राइट। Limited functional capacity, low reliability, insufficient performance, right? तो प्रोटोटाइप जो होते हैं वो एक्चुअल आपके पास में मॉडल्स नहीं होते हैं, वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, राइट। आप उनको देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका एक्चुअल वर्क क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, राइट, प्रोजेक्ट बना रहे हो। अब हमने आपसे बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, आपने बोला कि सर हमारे सारे फॉर्म बन गए हैं, अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, राइट। लेकिन हमारे फॉर्म में ये इनपुट जाएगा तो इसके बाद ये फॉर्म ओपन होगा, यहाँ गलत इनपुट करेंगे तो ये एरर प्रोवाइड होगी। दैट इज अ प्रोटोटाइप। आपने रनिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ, आपने उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया, आपने उसके सारे पेजेस बना दिए, रिक्वायरमेंट जो आपने फ्रीज करी थी उसके अकॉर्डिंग यूजर को ये समझ में आ गया कि हाँ मुझे लॉगिन पेज ये मिलेगा, लॉगिन करने के बाद में ये पेज ये मिलेगा। हम अगर बिल जनरेट कर रहे हैं तो हमें ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन डालनी है, आफ्टर सर्टेन इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमारे पास में ये रिपोर्ट जनरेट होगी। सो उसे एक प्रोटोटाइप मिल गया, डमी मिल गया, राइट। सो उसको अपनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर उसे वहां पे कोई भी पार्ट क्लियर नहीं होता है तो वो आपको कम्युनिकेट करेगा, यू डायरेक्टली चेंज दैट requirements and incorporate in your actual project, right? So ये आपके पास में प्रोटोटाइपिंग का एक मॉडल होता है, राइट। इलस्ट्रेट द कस्टमर्स, राइट, इनपुट डेटा फॉर्मेट्स, मैसेज, रिपोर्ट्स और इंटरेक्टिव डायलॉग्स जो भी आपके पास में हो। अब अगर आप किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यूजर के लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है रादर देन थ्योरेटिकल फॉर्मेट। अगर हम किसी भी यूजर को थ्योरेटिकल पार्ट में चीजों को बता रहे हैं तो वो आपके पास में प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर नाउ, examine technical issues associated with the product development. Often major designing issue depend on issue like response time of hardware control, efficiency, strong algorithm. Right. The third reason of developing a prototype is it is impossible to get it right the first time. So हम पहली बार में सब कुछ सही प्लान नहीं कर सकते हैं, right? We must plan to throw away the first product, right? If we want to develop a good product, right?
तो हमने आपसे बोला कि अगर हम फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ रिफाइन करने जा रहे हैं तो 100% रिफाइन नहीं हो सकती। हमने जो भी चीज़ें रिफाइन करी उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, यूजर को रिप्रेजेंट किया, यूजर ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उसमें अगर कोई भी चेंजेस है उसने हमें बताया, हमने उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया, एंड देन दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल अनलेस जब तक कि यूजर की रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं हो जा सकती, राइट। सो प्रोटोटाइप आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होता है। स्टार्ट विद द अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट से, राइट। कैरी आउट द क्विक डिजाइन, और उसके बेसिस पे हम एक लमसम डिजाइन जिसको बोलते हैं उसको डिजाइन करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल इज बिल्ड यूजिंग सेवरल शॉर्टकट्स, हम बहुत सारी तरीके के शॉर्टकट्स यूज करके आपके पास में प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमें वहां पे एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं दिखानी है, हमें केवल जो चीजें समझनी है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट, जिससे हमें यूजर की रिक्वायरमेंट क्लियर कट अंडरस्टैंड हो जाए, और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन कर सकें, राइट। द deployed prototype is developed prototype is submitted to the customer for his evaluation, right। हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, राइट, हमने यूजर को यूज करने के लिए दे दिया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट, जैसे हमने आपसे बोला था कि कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर हमारे पास में है मार्केट में यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करता हुआ, तो हमने उसका एक ट्रायल वर्जन यूजर को दे दिया, राइट। क्या ये आपके लिए रिक्वायरमेंट, इसमें सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, यूजर ने उसे यूज किया, राइट। यूज करने के बाद हो सकता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई हो, और हो सकता है उसकी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स हो जो नहीं सॉल्व हुई हो, तो उसने आपको वो रिक्वायरमेंट बता दी। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हम उस एग्जिस्टिंग जो हमने उसको प्रोटोटाइप दिया हुआ था उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हमें नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ prototyping development. The actual system is developed using the classical waterfall model approach. तो जब ये काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से वही क्लासिकल, अब जैसे कोई नई रिक्वायरमेंट आई है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिबल स्टडी करनी पड़ेगी, राइट, फिर उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर डिजाइन करना पड़ेगा, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, बहुत सारे पार्ट आपके पास में एज इट इज होते हैं। तो इसीलिए इन अर्लियर वी यूज द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज अ बैकबोन ऑफ द न्यू मॉडल्स, राइट। तो जब भी हम किसी भी नए मॉडल्स की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कौन सा मॉडल यूज होता है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यूज होता है, राइट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिजाइनिंग, build prototype, customer evaluation, right, and then refine requirement, this is the cyclic phase। ये जब तक चलता रहता है जब तक कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं हो जाती है। आफ्टर कस्टमर सेटिस्फाइड, देन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सो these are the part of classical software development model, right, or we can say iterative, right, waterfall model, clear? So in between requirement analysis and designing phase, some prototypes are introduced, right, that is a स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, राइट। हम कितनी रिफाइन रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हैं उतने ही हमारी वर्किंग आसान हो जाएगी, राइट। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज में क्या करते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट। डिजाइन एंड कोड फॉर द प्रोटोटाइपिंग इज यूजुअली थ्रू, राइट, even through constraints of working prototype model involves additional cost, overall development cost might be lower। हो सकता है कि शुरू में हमारे पास में हम जब किसी प्रोटोटाइप मॉडल पे वर्क कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, बट ओवरऑल जब हम पूरा डेवलपमेंट यूज करते हैं तो हमारे पास में कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सिस्टम विथ अनक्लियर यूजर रिक्वायरमेंट, शुरू में क्या होता है, अन यूजर रिक्वायरमेंट जो होती है यूजर्स की वो अनक्लियर होती है, सो इट टेक्स टाइम, सो हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट बेयर होती है, राइट। लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है तो हम बड़ी इजीली उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो जो आगे का टाइम है वो हमारे पास में रिड्यूस हो जाता है। तो ओवरऑल आपके पास में कॉस्ट बैलेंस हो जाती है। मैनी यूजर रिक्वायरमेंट गेट प्रॉपरली डिफाइंड एंड टेक्निकल इशूज गेट रिजॉल्व, और बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो वन टाइम में ही हमारे पास में सॉल्व हो जाती हैं, राइट। इवोल्यूशनरी मॉडल्स क्या होते हैं आपके पास में, right, this system is broken down into several models, right, which are be incrementally implemented and delivered। हम क्या करते हैं evolutionary model में, हम मॉड्यूल्स वाइज अलग अलग चीजें बनाते हैं और उन मॉड्यूल्स को हम वन बाय वन क्लब करते जाते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि हमें एक स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें हैं, आपकी एकेडमिक से रिलेटेड हैं, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपकी फीस से रिलेटेड है, आपके हॉस्टल से रिलेटेड है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। तो हमने हर एक मॉड्यूल को अलग अलग डिजाइन कर लिया और बाद में इन मॉड्यूल्स को एक एक करके क्लब करते गए इंक्रीमेंटल अप्रोच में।
सो एट द लास्ट जो हमारा सिस्टम डिजाइन होगा वो हमारे पास में क्या होगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जिसमें ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, राइट. द इनिशियली प्रोडक्ट skeleton is refined into an increasing level of capacity, right, capability by adding new functionality in successive versions. So जैसे जैसे हम फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे हम उसके न्यूअर वर्जन्स लॉन्च करते जाएंगे, राइट. वर्जनिंग का मतलब क्या होता है, देखो अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, जाके टेस्टिंग में भी पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, जब भी हम कोई भी नई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, अगर वो माइनर होती है तो हम उसमें पॉइंट्स वर्जन इंक्लूड करते हैं. जैसे हम आपसे बोलते हैं हमने माइनर कोई फंक्शनैलिटी यूज करी है तो 1.1.1 वर्जन हो गया, राइट. कभी कभी हम देखते हैं 1.2 वर्जन लॉन्च हो गया, तो 1.2 का मतलब है कि हमने माइनर से कुछ ज्यादा आपके पास में फंक्शनैलिटी ऐड करी है. और जब हम इंटाइनी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में चेंजेस करते हैं तो हमारे पास 2 की जगह 3 वर्जन आ गया. जैसे हम आपसे बोले 95, 98 विंडो, राइट, एक्सपी, देन आपके पास में मिलीनियम आया, राइट, फिर आपके पास में 7, 8, 10. सो जब आप बड़े वर्जन लॉन्च कर रहे हो तो इट मीन्स आप उनके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में भी चेंजेस कर रहे हो, राइट. लेकिन आपके पास में जब हम विंडो 3 आया था और विंडो 3.1 आया था, तो आपके पास में फंक्शनैलिटी वाइज लिटिल बिट चेंज हुआ. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पास में वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू पे नए नए रिलीज किए जाते हैं, जिनको आप अल्फा और बीटा वर्जन के फॉर्म में भी बोलते हो कि अल्फा और बीटा वर्जन लॉन्च किया जाते हैं जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, राइट. सो अभी हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, वाई वी लॉन्च द अल्फा बीटा वर्जन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटा टेस्टिंग आपके पास में जो वर्जनिंग होती है वो आपके पास में फाइनलाइज हो जाती है. बेस्ट एग्जांपल है यूनो, एसबीआई का, राइट. यूनो आपके पास में, या गूगल का बीटा वर्जन आपने देखा हुआ था जब उन्होंने माइक सिंबल यानी वॉइस कम्युनिकेशन ऐड किया था, तो गूगल का बीटा वर्जन आपके पास में लिखा हुआ था. आफ्टर सर्टेन टाइम आपके पास में वो बीटा वर्जन हट गया और आपके पास में माइक का सिंबल जो है वो आपके पास में कंटिन्यूसली आपके पास में एड ऑन हो गया. यानी अब ये अपग्रेडेशन हो गया, इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, बीटा टेस्टिंग, ये यूजर के थ्रू एक्सेप्टेबल हो गया. नाउ दैट वर्जन यानी पुराना वाला वर्जन आपके पास में हटा दिया गया, ऑब्सोलीट हो गया, अब नया वाला वर्जन आ गया, राइट. सो दैट इज द इवैल्यूएशनरी मॉडल्स, राइट. सो ए, देन ए बी हमने ऐड किया, देन ए बी सी ऐड किया, दैट इज द इवैल्यूएशनरी मॉडल कि हम चीज़ों को एक एक करके ऐड करते जाते हैं और आपके पास में फाइनल जो हमें अचीव करना होता है उनको हम अचीव करते जाते हैं चीज़ों को. क्लियर. नाउ एडवांटेज ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल्स क्या होते हैं, यूजर गेट चांस टू एक्सपेरिमेंटल विद अ पार्शियल डेवलपमेंट सिस्टम, राइट, help finding extra user requirement, core modules get tested thoroughly. core module का मतलब होता है जो मेन मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम पहले से टेस्टेड करते हैं, राइट. उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अगर उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो हमारे पास में ओवरऑल जो सिस्टम है वो फॉल्टी हो जाएगा, राइट. क्लियर. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट. डिसएडवांटेज क्या है, ऑफन डिफिकल्ट टू सब डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू फंक्शनल यूनिट. सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हम किस पार्ट को किस जगह पे रखें. तो डिवाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, विच कैन बी इंक्रीमेंटली इम्प्लीमेंटेड एंड डिलीवर्ड, राइट. इवोल्यूशनरी मॉडल इज यूजफुल फॉर एवरी लार्ज प्रॉब्लम. जैसे हम किसी भी ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात करें, सो ये आपके पास में किस पे बेस्ड हो सकते हैं, ये आपके पास में इवोल्यूशनरी मॉडल्स पे बेस्ड हो सकते हैं. आपके पास कोई भी ईआरपी मॉड्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास में बेसिकली ईआरपी जो है वो 7 फेज आपके पास में मॉड्यूल है, राइट. तो 7 फेज कॉन्सेप्ट है आपके पास में, तो हम हर फेज को अलग अलग यूज कर सकते हैं. स्टार्ट विद द फाइनेंस एंड एंड विद द आपके पास में मेंटेनेंस पार्ट, राइट. सो हम फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट वाले पार्ट तक लेके जाएंगे. तो बीच के जितने भी फेजेस हैं आपके पास में वो फेज हर एक पार्ट के साथ में कोरिलेट होते चले जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी मॉडल, राइट. सेम एज आपके पास में अगर हम आपसे बोलते हैं अभी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाई है, तो सबसे पहला मॉड्यूल क्या था, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल था ना. विदाउट रजिस्ट्रेशन हम आगे कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. सो डिवाइडेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. इटरेशंस क्या होते हैं आपके पास में इवोल्यूशनरी मॉडल्स के साथ में, मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट्स, राइट. हम दोनों तरीके की चीजों को एक साथ यूज करते हैं. हमने आपसे बोला था वाटरफॉल मॉडल्स का जो पार्ट है इटरेटिव वाटर, हम चीजों को एक लेवल पे फाइनलाइज किए, फिर हमें लगा कुछ प्रॉब्लम है, हम पीछे वाले फेज पे वापस गए, वहां रिफाइन किया, फिर आगे वाले फेज पे आए. सो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट. So existing functionality from the current release may also have been the modified. तो सपोज हमने कोई चीज डिजाइन करी और इसके बाद हमें लगता है कि नहीं उसमें कुछ और नया ऐड ऑन होना चाहिए, तो हम फिर से प्रीवियस वाले फेज पे जाते हैं, वहां पे चीजों को ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन करने के बाद उसे रिलीज कर देते हैं, राइट. सो
सेवरल एडवांटेज हैं आपके पास में. ट्रेनिंग कैन बी स्टार्टेड ऑन द अर्लियर फेज, कस्टमर फीडबैक टेकन इनटू अकाउंट्स, राइट, मार्केट कैन बी क्रिएटेड, right, frequent releases allow developers to fix the unpredictable problems quickly, right. को जब हम क्या करते हैं इस तरीके की फंक्शनलिटी पर वर्क करते हैं तो बहुत सारी वर्किंग आपके पास में साइमल्टेनियसली वर्क करती है. तो जब साइमल्टेनियसली आप बहुत सारी वर्किंग स्टार्ट हो गई तो आपको हर एक लेवल पे अलग अलग फीडबैक्स मिलते जाते हैं, राइट. उन फीडबैक्स को आप इनकॉर्पोरेट करते जाते हो आप अपनी करंट वर्किंग के साथ में, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपके पास में मैक्सिमम टाइम एरर फ्री हो जाता है, राइट. इसके बाद आता है स्पाइरल मॉडल. सपोज वो हमने इसे प्रपोज किया हुआ था 1988 में. ईच लूप ऑफ द स्पाइरल रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. स्पाइरल का मतलब क्या है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है लूपिंग वाइज. आप लोग देखते हो स्पाइरल बाइंडिंग, राइट. तो आपके पास में स्पाइरल का मतलब क्या है, हर एक दोस्त एक दूसरे की चीज के साथ में लूप है, राइट. Innermost loop might be concerned with the system feasibility, the next loop with the system requirement definition. तो बहुत सारे आपके पास में लूपिंग है. हम स्टार्ट करेंगे एंड लूप्स को आपके पास में क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे. देयर आर नो फिक्स फेज इन दिस मॉड्यूल. इसमें कोई भी फिक्स फेज नहीं होता. देखो क्या होता है आपके पास में, डिस्क हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको हम इंक्रीमेंट सॉरी स्पाइरली वाइज आपके पास में इंक्रीज करते जा रहे हैं. सो देखो हर एक स्पाइरल आपके पास में चारों जोन से होके जा रहा है, राइट. हर एक स्पाइरल आपके पास में चारों जोन के साथ में कनेक्ट हो रहा है. सो पहले जोन में क्या है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव. सेकेंड जोन में क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द रिस्क. एंड थर्ड पार्ट में आपके पास में क्या है, डेवलपमेंट, डेवलप नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड कस्टमर इवेल्युएशंस एंड प्रोटोटाइप्स, राइट. तो ये आपके पास में क्या है, हर एक फेज में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता जा रहा है. तो जब हर एक फेज के साथ में अगर आपके पास में चीजें कनेक्ट होती जाएंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है आपके पास में हर एक चीज दूसरी चीज के साथ में कनेक्ट है तो आपके पास में चीजें क्या होंगी, इजी गोइंग होंगी, राइट. आप हर एक चीज को हर एक लेवल पे इवेलुएट कर रहे हो. तो द टीम मस्ट बी डिसाइडेड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू फेजेस. स्टार्ट वर्क यूजिंग सम generic model, add extra phases. Each loop in the spiral is split into 4 sectors, right. कौन कौन से सेक्टर हैं, ये चारों सेक्टर्स अगर आपके पास में डिफाइन है तो इट मींस हमने सारी चीजों को एक साथ कंसीडर किया हुआ है. तो अगर हम कोई प्रोटोटाइप ले रहे हैं या कोई इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल्स ले रहे हैं तो वो सारे की सारी चीजें इन चारों फेजेस से होके जाएंगी. तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो आपके पास में मोस्ट ऑफ द टाइम एरर फ्री होगा, राइट, इन प्रीवियस मॉडल्स, राइट. ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, राइट. इसका मतलब क्या है कि आपने आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट किया, रिस्क एनालिसिस काउंट करी, उन सबको आपने इस पार्ट में कैलकुलेट किया है. रिस्क असेसमेंट आप करते हो सेकंड फेज में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आपके पास में अगर आप उस मॉड्यूल को ऐड कर रहे हो. इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आप उसके डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन फेज को यूज करते हो. फोर्थ क्वाड्रेंट में आप रिव्यू एंड प्लानिंग करते हो, राइट. तो ये सारे फेजेस आपके पास में एक दूसरे के साथ में अटैच हैं. तो अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रीवियस पार्ट में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फ्लोट है. क्यों, क्योंकि दोनों चीजें आपके पास में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर रन कर देंगे, राइट. सब अब स्पाइरल मॉडल आपके पास में, मेटा मॉडल्स जो है आपके पास में, सिंगल लूप स्पाइरल रिप्रेजेंट वाटरफॉल मॉडल, राइट. हर एक पार्ट आपके पास में इंडिविजुअली क्या है, वाटरफॉल मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. यूज इवेल्युएशनरी अप्रोच. इसमें आपने इवेल्युएशनरी अप्रोच भी यूज कर ली है. इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्टिंग द रिस्क ड्यूरिंग द ईच इटरेशंस अलोंग विद द स्पाइरल प्रोटोटाइप्स. यानी इस मॉडल में अगर हम आपसे बोलें स्पाइरल मॉडल में तो हमने सारी चीजें यूज कर ली, चाहे वो इटरेटिव हो, चाहे वो प्रोटोटाइप हो, चाहे वो आपके पास में इंक्रीमेंटल हो, राइट. सारी अप्रोचेज इसके अंदर यूज है. तो हमारे पास में ये कहीं ना कहीं आपके पास बेस्ट आउटपुट देगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मॉडल. कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल, right. Evaluationary model is suitable for the large problem. A spiral model suitable for the technically challenging software product that are subject to several kind of risk, right. Clear. So ये आपके पास में जनरल टॉपिक्स था जो आपके सिलेबस से कंटेन कर रहा था, राइट.